Good afternoon, friends. Uh, Welcome to the special seminar on spirituality, and where you will know about what is your mind is speaking and how to deal with your mind. So today we are having last day of lockdown 3.0. Before that, we have already received another notification from Maharashtra government for lockdown 4.0. So I welcome CA Patil sir, speaker and past chairman and founder chairman of Navi Mumbai branch, CA Sanjay Nikam sir, CA Atul Beda sir, CA Virag Shah, CA Sanjay Bhujwal. So I request CA Virag Shah, organizer of this network and some webinar, to please proceed further. Thank you, Abhishek. We have a good going on this webinar series in this lockdown. So we thought it's very good time to have on spirituality. After this Corona, post-COVID, we have a more spiritual people, or people will be more be in a spiritual world. So we thought let's try for this, and we have a good speaker, CA Patil sir. Our request has been accepted immediately by sir. So thank you so much, sir. Would like to request Sanjay sir to have a few words, sir. Welcome address, sir. Thank you, Virag. Thank you, Abhishek ji. Thank you, TN Bafna sir, for giving us opportunity to gather here. I recognize presence of Atul Beda sir, our past WRC chairman and past Central Council member also, and our guide and mentor. Friends, I'd like to thank What Next Theme and CAs of Mumbai, network of 15,000 chartered accountants. I'll especially thank Virag and Abhishek for bringing such a large number of professionals on one platform and providing them opportunities and facilities every time. And this difficult time also, you have stood by our profession and members. Very big thank you to all of you. Friends, good afternoon and very warm welcome to all the attendees. Friends, everyone knows, I don't need to elaborate it again, that since last 2 months we are suffering from a lockdown, unprecedented situation, which was not experienced by our seniors also, not our youngsters also. So at this point of time, our WRC, our ICAI and our study groups are trying hard to keep our members together and to give them hands and support to keep and helping them to keep motivated. And at this point of time, I appreciate this group of What Next and CAs of Mumbai. They also thought on this point and bring out with one spiritual and motivational speech, which we badly need. When we are stuck at the home and when we don't see the way out, we are so struggling for that. And at this point of time, we need the help of our gurus. Friends, I'm very happy and feel privileged and honored to have my guru as a today's speaker, E.A. Patil sir. Friends, my other colleague Sanjay will go in detail with his introduction. At this point, I'm remembering one doha of Sant Kabir. It goes like Guru Govind Devu Khade, Kaake Lagu Pae. Sir, Kaake Lagu Pae, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गोविंद दियो बताया। सर, इसका आशय ऐसा है, जब कुछ सुझता नहीं, and when we don't get any way out, we go to प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर से तो डायरेक्ट बात कर नहीं सकते, तो परमेश्वर ने गुरु को बनाया। और ये दोहा से कबीर जी ये कहना चाहते हैं, अगर तुमको कोई कठिनाई है तो go to Guru, he will guide you. And on that principle, we have today with our Guru, E.A. Patil sir, to guide us to come out with this stressful time. Thank you, Guruji, for accepting our request, and will keep us motivated and keep us our morale boosting and strong, so that we will come out with out of this struggle. Thank you very much, organizers, for giving me time to speak my mind. Thank you very much, and I hand over charge to the MOC. Thank you very much, friends. Thank you, Sanjay sir.
It's our pleasure, sir. Would like to Vival- request Atul Beda, sir, our past chairman WRC, past CCM from WRC for 6 years. Presently, sir is the director at Yes Bank, nominated by government. Sir, please speak few words of wisdom for all of us and all the attendees. Thank you, Virag, Abhishek, both Sanjay Nikam, Sanjay Bhujbal, and my very dear, very close friend, colleague, guide, philosopher, Mr. E.A. Patil sir. We've been in touch maybe more than, I would say, nearly 30 years now, because when I started my practice in Navi Mumbai, I think he was there as the senior most person, and I recollect my memories with Mr. K. Patil, where we started the study circle was the first thing which we started in Navi Mumbai way back in, I think, 89, 90 somewhere. And since then, we have been struggling and trying to see how the chartered accountants of Navi Mumbai can get more and more academics. And Mr. Patil used to play a very, very crucial and important role in those days as a leader of the chartered accountants in Navi Mumbai. And since then, I've been seeing how he has, adapted to the change which has happened. During the course of his practice, he was a very, very strong practitioner, and gradually he moved on to the today's avatar. What we see Mr. Patil's avatar today, in that Gandhian cap and kurta, and that is the new avatar of Mr. E.A. Patil, which has been following since last few years. And I've been in touch with him, and the way he has, transformed his life from a thorough professional now to a thorough person who is into the spiritual path. And the path is very, very rigorously following. And we've talked to him about the spiritual things, what he is doing. I think he is doing an amazing thing, absolutely something great. And today the topic is very much apt for the person where we are trying to hear from him, who is not talking about theory, because practically he's been doing this, and I have witnessed this for last number of years. And what he's talking today would be something about mind. I think that is something huge. It is not necessary that only in the spiritual world you require your exercise of mind and knowledge of mind, how it works. But for all of us in our day-to-day life, whether it be personal life, whether it be professional life, I think knowing how the mind works, and if we can really tame our mind, if we can train our mind, I think we can really rule the world, because mind is something where everything starts from there. So if you are able to control that mind, if you are able to channelize your thoughts, channelize your mind, I think so many things could be really be changing in your professional and personal life. Mr. Patil is, I would say, एक जिंदा उदाहरण है इस चीज का, कि क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि जब वो प्रैक्टिस में थे, फुल टाइम इनटू द प्रोफेशन, साथों साथ एक बहुत बड़े टीचर हैं, शायद नवी मुंबई का शायद ऐसा ही कोई कॉमर्स स्टूडेंट बाकी होगा जो इनका स्टूडेंट ना रहा होगा, बिकॉज I know his popularity amongst the students community, and then amongst the clients, excellent rapport. I know his rapport with the income tax department, absolutely great. And today, his rapport with the devotees of his, that is also excellent. When I first saw him few years back in the traditional dress of a devotee, I was not able to first recognize him from a distance. And then he told me how the journey has changed. So I think today's session would be a great session, something really of a great relevance today, because as Sanjay said, now we are entering the fourth phase of our lockdown, and just sitting at home doing so many things, which various webinars, etc. I think all professionals, this is how you can now train your mind and see how the mind works. So with this few words, I wish all of you a very happy learning. And Patil sir, khub pranam. And back to you, Sanjay.
Thank you very much, Atul sir. Friends, I just want to acknowledge that we are having our managing committee member, CA Rajendra Phadke sir, CA Srinivas, and CA TC Bafna sir is a JCF Navi Mumbai president, as well as is a mentor of our network also. So now I request Bafna sir to say a few words about this seminar. Thank you, Abhishek. Thank you, Abhishek. Uh, Good afternoon to the Atul Beda Sahab, Sanjay Nikam, this Bhujbal Patil sir, and this Virag to organize such a nice program in the lockdown period. Every day we are organizing this program in some subject matters only. Beside these subject matters, if the other subjects are taking up, that is more useful for the mind and the peace of the mind, you can say. तो पाटिल साहब का बारे में जो सुना है कि वो बहुत आध्यात्मिक गुरु है एक तरह से, तो मैं भी सोचता उनका सुनना चाहता था। मैं थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी। और मेरी बहुत इच्छा थी कि आज पाटिल साहब से मैं भी सुनूं कि वो इस वाशी के वो सीनियर पर्सन भी है और बहुत ज्ञानी है और बहुत धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी है। तो हम भी उन्हें लाभ लेने के लिए ये अच्छा मौका दिया। इसके लिए मैं अभिषेक को बहुत धन्यवाद देता हूँ और संजय का तो है ही है, क्योंकि ये सब प्रोग्राम अच्छे करने के लिए कि अच्छे प्रोग्राम करते रहे। अभी इन्होंने 3-4 दिन पहले भी एक गुरु माँ का प्रोग्राम रखा था, वो भी इसी तरह का था। कल प्रोग्राम एक अलग रखा था, वो था उसका बायोडाटा पे लिंक्डइन का। That was in addition to the subject matters of income tax, GST, this. In addition to that, the other programs are arranging. So that is a more benefit for the professional people to have some clear mind in the different mind in the piece of this professional people. So thank you, this Abhishek, Virag, and thank you to all others. And respect to this A. Patil sir. तो नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद तो आपको, और आपके लिए सुनने के लिए वाकई हम तैयार हैं। आप प्रवचन दीजिए तो हम सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bafna sir. Now I request my colleague and friend CA Sanjay Bhujbal sir. He's vice chairman of Navi Mumbai branch to give a brief introduction of CA EA Patil sir. Thank you, Abhishek sir. Thank you, Sanjay sir, Atul sir, TC Bafna sir, and of course my guru E.A. Patil sir. I think there is no need to give an introduction of Patil sir because everyone knows, and Sanjay sir and Atul sir has already given all these things about him. But as a formal introduction, I should give an introduction of him. Eknath Atmanath Patil, he's a CA, FCA. He is practicing since 1979. That is 4 decades. He has already completed his practice. He is a senior partner in E. Patil and Associates LLP. The practicing chartered accountants for more than 40 years in the areas of direct taxes, indirect taxes, audits, project finance, due diligence, mergers and acquisitions. Also, he was a lecturer in ICL Motilal Junjunwala College for more than 29 years, and he retired in the year 2009. At that period, he was head of the department in the college. After that, he started giving spiritual and motivational lectures by way of kirtans and pravachan. During his college days, he was the past chairman of the Board of Service Accountancy in the University of Mumbai. He is also a member of Academic Council, University of Mumbai. He is also Board of Studies member for 5 years. He was a member of the Budget Committee. He was a member of the Academic Council, and he was the founder chairman of Navi Mumbai branch of WRC. Also, he was the founder chairman of Navi Mumbai Sanskritik Sabha. Nowadays, he is also a member of the Ethics Committee at MGM University, as well as Karmana Bhavara Patil College. It gives me immense pleasure to introduce to my guru, Sri A. Patil. With this brief introduction, I request Patil sir to take over the charge of the session, please. Thank you, sir. Respected chairman of the branch,
Iraq Shah, who has arranged this program, Atul Beda Sahab, Bhafna Sahab, Abhishek, Sanjay Nikam, and Sanjay Bhujbal, and other colleagues who have participated in this seminar. Friends, I am really happy to meet you all, because at this age nobody is interested to meet the old people. So I'm getting opportunity to see you on the screen. Thanks a lot. Friends, today's topic, mind and mind management, power of mind and mind management. Of course, last time also I had spoken on this, that is for local CAs. Maybe they are again in this topic, but I will try to give little different to you people than what I have spoken last time. I'll try my best. Thank you. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah, Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim, Dvandvatitam Gagana Sadusham Tattvam Asyadilashyam, Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam, Bhavatitam Trigunaretam Satgurum Tam Namami, Adyan Timirandrasya Jnananjani Shalakaya, चक्षुसन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयांचे केलिया स्मरण होय सकळ विद्यांचे अधिकरण, एति वंदो श्रीचरण श्री गुरुंचे ते नमस्कार आता। देखो, भगवान ने जब सृष्टि बनाई, सृष्टि तो भगवान बोलेगा तो ब्रह्मदेव ने निर्माण की है। तो जब सृष्टि निर्माण की, ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि बनाई, तो ब्रह्मदेव ने देखा सृष्टि में सब कुछ बनाया, सब भूत मात्रों को बनाया, मगर एट द एंड ब्रह्मदेव को ऐसा समझ में आया कि ये सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी मैं नहीं बनाया कि जो मेरा याद करे, मेरी भक्ति करे, मेरे से प्यार करे। ऐसा कोई प्राणी नहीं है सृष्टि में। देखो, आदमी के सिवा, मनुष्य के सिवा ये सृष्टि में और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान को याद करे। पूरा सृष्टि बनाया ब्रह्मदेव ने, मगर ये सृष्टि में उन्होंने ऐसा कोई प्राणी नहीं बनाया कि जो भगवान का याद करे। ये गलती मतलब उनके तरफ से, मतलब ब्रह्मदेव सोचा कि ये मेरा गलती है, ऐसा कोई तो करना चाहिए कि जो मेरा याद करे। तो एट द एंड ब्रह्मदेव ने सोचा कि ऐसा एक कोई प्राणी निर्माण करे। तो एट द एंड ऑफ द सृष्टि, जब सृष्टि बनाई तो एंड में ब्रह्मदेव ने ये आदमी को क्रिएट करने का सोचा और आदमी को क्रिएट किया। और ब्रह्मदेव ने सोचा क्या ये जो आदमी मैं बनाया उसको मेरे जैसा बनाएगा, जो मेरा जब शक्ति है, मेरे पास जो सब गुण है वो सब गुण उसको दे देगा और मेरे जैसा ही बनाएगा। और ऐसा उन्होंने ब्रह्मदेव बनाने लगा और आदमी को बनाया और पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया, मतलब भगवान जैसा उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो वहां नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने ब्रह्मदेव को सतर्क कर दिया, बोले आप ये गलती कर रहे हैं। नारद मुनि बोले उनको, आप ये गलती कर रहे हैं। तो बोले क्या गलती कर रहे हैं? बोले मेरा तो सोच क्या गलत है क्या? कोई ऐसा सृष्टि में एक ऐसा प्राणी मात्र नहीं है को जो मेरा याद करे, तो मैं ये ऐसा प्राणी बना रहा है को जो मेरा याद करेगा। तो नारद ने उनको सतर्क कर दिया और बोला उनको, ये आपका गलती है, इसके लिए है कि ये प्राणी को आप सब कुछ अगर दे देंगे, आपके जैसा ही बनाएंगे, सब गुण देंगे, सब शक्तियां दे देंगे, तो आपकी याद क्यों करेगा? वो खुद को ही भगवान समझेगा, तो आपकी याद नहीं करेगा। तो आप ऐसे करो क्या वो तुम्हारी याद करे, ऐसा कुछ तो उसको कुछ डेफिशिएंसी रखो, कुछ तो ऐसा कम रखो उसमें, तो वो तुम्हारी याद करेगा। तो ब्रह्मदेव बोले अभी तो उनको बनाया हमने और सब कुछ दे दिया, अभी कैसे करूं? तो फिर सोचा ब्रह्मदेव ने और उन्होंने सोच के बोला, बोले एक चीज कर सकता है, मैं एक चीज नहीं दिया उनको। तो बोले क्या चीज है? तो ब्रह्मदेव ने बोला, बोले सब कुछ इसको दे दिया मगर मैंने उसको मन का शांति नहीं दिया। ब्रह्मदेव ने बोला ये आदमी को मैं माइंड का, मन का शांति नहीं दिया, ये शांति के लिए इसको भटकना पड़ेगा। ब्रह्मदेव बोला, तो बोले एक ही चीज कम रखा इसके लिए, ये
मन शांति के लिए, मन का शांति के लिए उसको सब जगह भटकना पड़ेगा, वो उसको कभी नहीं मिलेगी। और वो मन का शांति के लिए उसको मेरे पास ही आना पड़ेगा। वो जब तक मेरे पास नहीं आता है तब तक उसको मन का शांति नहीं मिलेगा। इसके लिए ये माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ज्ञानेश्वर भगवान बोलते हैं कि तू कुछ मेरे को दूसरा कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि है, गीता में बोला है, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश है, निवसस्यि मय्येव अतः अत्र न संशया। बोले 12वां अध्याय में है, चैप्टर 12, तो उसमें बोला है भगवान ने कि मुझे मन और बुद्धि दे दे तेरा, और कुछ मत दे दे। अर्जुन को बोला मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा हार नहीं चाहिए, नारियल नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सोने का मुकुट नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तेरा मन और बुद्धि दे दे। तो मन और बुद्धि देने के बाद आदमी के पास क्या रहता है? कुछ नहीं है। मन और बुद्धि यही तो मेन है, यही तो तुमको आपको चला रही। आदमी को चलाने वाला कौन है? मन और बुद्धि। आदमी को सब पहचान करने वाला, जान मतलब जो उसका ज्ञान देने वाला कौन है? तो मन और बुद्धि है, इसके सिवा नहीं होता है। जैसे मैं लास्ट टाइम बोला, ये मन जो है वो अंतःकरण का पार्ट है। देखो भगवान मतलब मनुष्य के अंदर हम लोग 4 वर्ड्स यूज करते हैं, जैसा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा चित्त ठिकाने पे नहीं है, मेरे को अहंकार हो गया, ये सब वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। और ये अंदर है करके हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। मन अंदर है, बुद्धि अंदर है, ये सब चित्त अंदर है, ये सब अंदर है, शरीर में है करके हम लोग सोच रहे हैं, मगर वो किधर है? ऐसा कोई स्पेशलिस्ट है क्या? ऐसा कोई डॉक्टर है क्या कि उसको अगर मैं बोला मेरा बॉडी तुमको डोनेट कर रहा है, मेरे बॉडी में से तुम मेरा मन निकाल के दिखाओ, ऑपरेट करो, मेरा मन निकाल के दिखाओ, मेरी बुद्धि निकाल के दिखाओ, मेरा चित्त किधर है वो मेरे को दिखाओ। कोई दिखाने वाला है क्या? यहां से नहीं, अमेरिका से, कहां से, अब्रॉड से देखो, कौन सा भी डॉक्टर आएगा तो मन को दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकता है, क्योंकि मन दृश्य नहीं है, उसको देख नहीं सकते। तो जैसे भगवान ने हम लोग को 10 इंद्रिय दिए हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, और उनको कंट्रोल करने के लिए माइंड दिया है, मन दिया है, और ये मन के ऊपर बुद्धि को रखा है। गीता में एक श्लोक है, गीता में अर्जुन को बता रहे हैं श्री कृष्ण, क्या इंद्रियाणि पराणि अहं, भगवान बोल रहे इंद्रियाणि पराणि अहं इंद्रियेभ्यः परम मना। मतलब ये इंद्रिय जो है बलवान है, मगर इंद्रियेभ्यः परम मना, भाई इंद्रिय मन के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इंद्रिय के ऊपर मन है। इंद्रियेभ्यः परम मना मनसा तु परा बुद्धि, और ये मन के ऊपर बुद्धि भगवान ने दी है, वो बुद्धि के मुताबिक मन को चलना पड़ता है। इंद्रियाणि पराणि अहं इंद्रियेभ्यः परम मना मनसा तु परा बुद्धि ये बुद्धे परता तू सा। मतलब ये बुद्धि के ऊपर भगवान है, मतलब आत्मा है, और आत्मा के ऊपर परमात्मा है, ऐसा लिंक है। तो ये सब इंद्रिय जो भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय दिए, इसके ऊपर मन है। इसके लिए तुकाराम महाराज उसको बोलते हैं मन इंद्रियांचा राजा, मतलब उसको किंग कहा है। ये सब इंद्रियों का आदमी कंट्रोलर कौन है? तो राजा कौन है? तो बोले मन है। तो ये मन सब इंद्रियों को काम दिलाता है, और उसका मुताबिक ये इंद्रिय काम करती है, और मन के सिवा ये इंद्रिय काम ही नहीं कर सकते। ये अगर मन का साथ नहीं रहेगा तो इंद्रिय काम नहीं कर सकते। देखो जैसा मैं लास्ट टाइम बताया, अगर आप मेरा सुन रहे, अगर मेरे बताने के, मेरे जो वाक्य ऊपर और मेरे वर्ड्स के ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा, मैं क्या बोल रहा है इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा उसका मीनिंग क्या, मैं क्या बोला करके नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, समझो आप बैठे बैठे अगर घर का सोचने लगे, तो मैं क्या बोल रहा हूं उसका आपके ध्यान में नहीं आएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपका चित्त नहीं है, आपका मन नहीं उधर। तो जब तक आपका मन उधर नहीं है तब भी सुनना, मतलब कान का वो आवाज सुनने का काम है कान का, मगर इसके आगे जो सुनने का है वो मन का काम है, वो मन का काम है, वो मन सुनता है। जैसे देखो, अगर हम कुछ किसी लड़के को बाप ने बोला क्या भैया सिगरेट मत पियो, अगर उसने बोला बाप ने, तो वो सामने से बोलता है हाँ हाँ नहीं डैडी मैं नहीं पिएगा, मगर वो बाहर जाके शाम को दोस्तों के साथ मिलकर अगर सिगरेट पीता है तो उसने सुना क्या? बाप का सुना क्या? नहीं सुना। मतलब कान से सुना मगर उसके जाके मन से नहीं सुना। मन से नहीं सुना करके वो वही रिपीट करता है, जाके वापस वही करता है, जो सिगरेट पीने का है वो पीता है।
इसका मतलब उसने वो मन से नहीं सुना, कान से सुना। तो कान से सुनना और मन से सुनना ये अलग है। तो मन जब तक साथ नहीं देता कौन से भी इंद्रिय को, या कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेंद्रिय हो, तो जब तक उसको मन का साथ नहीं मिलता है तब को कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए माइंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए पावर ऑफ माइंड बोला है। पावर ऑफ माइंड क्या है? पावर ऑफ माइंड इज कंट्रोलिंग ऑल बॉडी, नथिंग एल्स। अगर आप माइंड कंट्रोल करेंगे तो आप भगवान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान भी आपके हाथ में आ सकता है। ऐसा नाथ महाराज ने बोला है, एकनाथ महाराज ने बोला है, वो बोलते हैं मनाची एक युक्ति जरिए लागे परमार्थी, दासी करी चारी मुक्ति, दे हाथी बांधोनी परब्रह्म। बोलो क्या बोल रहे हैं? मनाची एक उत्तम गति, मतलब ये मन का, माइंड का एक अच्छा आदत है। बोले क्या आदत है? तो अगर वो परमार्थ में लगे, भगवान के पीछे लगे, तो दासी करी चारी मुक्ति, मतलब चारों मुक्तियों को दासी करेगा। दासी मतलब गुलाम बनाएगा। इतनी ताकत है उसमें। ये चारों जो मुक्ति, उनके लिए ऋषि मुनि योगी सब लोग जो ट्राई कर रहे हैं कि मुझे सायुज्यता मुक्ति मिले या सलोकता मिले, समीपता मिले, ऐसे चार युक्ति है, चार मुक्ति है। तो ये चारों मुक्ति या सबसे श्रेष्ठ है सायुज्यता मुक्ति। वो मिलने के लिए वर्षों से कहीं मतलब तप करते, 10 साल 15 साल तप करके वो साध्य करने का ट्राई करते हैं। वो उनको साध्य नहीं होता है। क्यों नहीं साध्य होता है? उनको माइंड फेवरेबल नहीं होता, माइंड उनको साथ नहीं देता है। तो ये नाथ महाराज कह रहे हैं दासी करी चारी मुक्ति, दे हाथी बांधोनी परब्रह्म। अगर ये माइंड के ऊपर आप कंट्रोल किया, अगर आपका माइंड आपके हाथ में आ गया, तो परब्रह्म मतलब भगवान को भी आपके हाथ में बांध के दे सकता है। वो इतना ताकत, इतना पावर ये माइंड का है। तो इतना पावरफुल माइंड भगवान ने हम लोग को दिया है। मगर ये माइंड में भगवान ने आपको शांति नहीं दी। शांति के लिए, इसके लिए जो भी भगवान के पास जाता है वो शांति पाता है। तब तक शांति नहीं मिलेगी। कितना भी आप कमाओ, संसार में कितना भी रिच हो जाओ, कितने करोड़े कमाओ, कितने लाखों कमाओ, इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है जिनके पास धन दौलत है वो शांत है? अगर कोई आपका पहचान का है, आपको, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको सबका पहचान के सब धन दौलत वाले ही रहेंगे। तो उनको कभी शांति से सब फ्रेंडशिप में बातें करते रहेंगे तो उनको पूछो कभी फ्रीली, क्या आपको मन शांति है क्या? इतना आपको 10 करोड़ है या 50 करोड़ है या 100 करोड़, 5,000 10,000 करोड़ है, तो ये लेके आपके पास शांति है क्या? मन की शांति है क्या? अरे वो तो और चंचल रहे थे, हम तो बहुत बड़े हैं उनसे। एज कंपेयर टू देम वी आर वेरी गुड. Comparatively, we are really lucky that we are very good. शांति से सो सकते हैं। उनको खाने के लिए, सोने के लिए गोली लेती है, लोड़ी पड़ती। क्यों? अरे जितना कमाएंगे उतना मन अचंचल रहेगा, उतना उसके पीछे भागेगा। मुझे बताओ, अगर आपके पास संपत्ति है तो संपत्ति संभालने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वो कोई मांगेगा क्या, कोई आएगा क्या, बहन आएगी क्या, भाई आएगा क्या, दोस्त आएगा क्या, टैक्स भरना पड़ेगा क्या, 50 सोच है उसके पीछे। ऐसे बोलते हैं हमारे सदगुरु, बोलते हैं पाही कष्ट होती किती या धनार्जना, रात्र दिवस काल जीच द्रव्य रक्षणा, नष्ट झाल्या ही कष्ट तीची दे मना, आदि अंती दुख देई ही धनेशना। देखो, बोलो पाही कष्ट होती, के मतलब कमाने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। धन कमाना का भी है तो वो इजीली नहीं आता है। लॉटरी नहीं है, हर एक को लगता है। वो कमाने के लिए पसीना पसीना करना पड़ता है। तो पाही कष्ट होती किती या धनार्जना, रात्रन दिवस काळजी द्रव्य रक्षणा। अगर वो कमाया और रखा तो उसको संभालने के लिए रात दिन सोचना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लॉकर किधर है, तिजोरी किधर है, वो सब ढूंढना पड़ता है। वो सेफ है क्या? रात को नींद से जागता है और जाके देखता है, अरे कपाट है, खुला है नहीं ना, किसी ने खोला नहीं ना। इतना रात्रन दिवस काळजी द्रव्य रक्षणा, और वो भी नष्ट झाले कष्ट तीची दे मना। अगर वो नष्ट हो गया और चोरी हो गया तो भी वो कष्ट देता है। ऐसा नहीं सोचता चलो हमारे पास 10 करोड़ है, 1 करोड़ का चोरी हो गया तो छोड़ दो, बाकी तो है, बाकी में समाधान रहो, शांत रहो। मगर वो नहीं सोचता है, वो 1 करोड़ जो गया उसका सोचता है। क्यों? ये माइंड का आदत है। माइंड जो है ना, वो बुरी चीजों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जो बुरी चीज है
बुरा विषय है, बुरी आदत है, उसके ऊपर फटक करके जाता है, उसको आदत है, उसको बुरी चीज ही अच्छी लगती है, अच्छा चीज अच्छी नहीं लगती। ये माइंड की आदत है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसकी आदतें छोड़ना है। हम लोग को अगर माइंड भगवान को देना है तो उसकी आदतें जो है वो आदतें छोड़ना है। तो उसकी आदत क्या है? या विषया वाचून काही आणि अन्यथा रम्य नाही ऐसा स्वभावची पाई इंद्रियांचा। तो उसको क्या अच्छा लगता है? विषय, विषय बोलेगा तो संसार में जो भोग्य विषय है, जो 5 विषय बोले हैं, पंच विषय, शब्द रस रंग क्या रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ऐसे 5 है। 5 ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय है। जैसा आंख का रूप विषय है, कान का शब्द विषय है, और रसना का मतलब जीभ का रस विषय है, त्वचा का स्पर्श विषय है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय है। तो ये 5 विषयों के ऊपर ही जाता है वो भगवान के साथ में। भगवान के पास लाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसके लिए भगवान ने ये जन्म में हमको 2 कर्म दिए, बाकी जन्म में 2 ही कर्म है। हम लोग को 3 कर्म दिए भगवान ने मनुष्य जन्म में। मतलब संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। ये क्रियमान कर्म जो है उसको ही पुरुषार्थ बोलते हैं। तो पुरुषार्थ और क्रियमान कर्म बोलेगा तो क्या, जो बाकी जो योनि है उनको संचित और प्रारब्ध रहता है। संचित बोलेगा तो हम लोग जो कर्म किया है, ये कर्म हमको संचय होके रहता है हमारे पीछे। हम लोग हमारा डेथ हो गया तो भी ये जो पाप पुण्य का संचित है ना, ये हमारे साथ जाता है, ये खत्म नहीं होता है। हम लोग को ऐसा लगता है मरने के बाद क्या है, मरने के बाद सब कुछ गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो परमार्थ है, इसके लिए तो भगवान है, इसके लिए भगवान को याद करते हैं। क्योंकि जो काम करते हैं ना हम लोग, बुरा अच्छा बुरा जो कर्म करते हैं जन्म में, इसका सब जो पाप पुण्य जो होता है वो सब संचित करके रहता है, और वो हम लोग मरने के बाद भी हमारे साथ आता है। और इनफैक्ट जो संचित पहले जन्म का रहता है ना, उसमें से अगले जन्म में क्या भुगतने को आएगा, ये भगवान पहला अपना डेथ होने के पहले, अपना डेथ होने के पहले भगवान सोचता है कि इसका नेक्स्ट टर्न क्या है, अगले जन्म में इसको क्या भुगतने को आने वाला है। तो ये जो भुगतने को आने वाला है उस प्रकार का शरीर भगवान हमको देता है। कबीर जी का बहुत अच्छा दोहा है। कबीर जी बोलते हैं पहले बनते हैं तकदीरें। तकदीरें बोलेगा तो संचित से प्रारब्ध जो भुगतने को आता है उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो संचित में से कौन क्या भुगतने को आने वाला है वो पहला बनता है। कबीर बोलते हैं पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो साई की कारागिरी है, तू क्यों है गंभीर। कबीर जी बोलते हैं देखो पहले बनती है तकदीरें, मतलब हम एक शरीर छोड़ा तो दूसरे शरीर में प्रवेश करने के पहले भगवान तैयार रखता है दूसरा शरीर। ये एक आत्मा शरीर के सिवा नहीं रह सकता है। आत्मा को शरीर का आधार चाहिए। विदाउट शरीर, विदाउट बॉडी आत्मा या सोल कांट लिव। तो उसको शरीर का आधार तो चाहिए। इसके लिए भगवान एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर हम लोग को रेडी रखता है। और वो शरीर कैसा डिसाइड करता है कौन सा शरीर देना चाहिए करके, तो अपना जो संचित रहता है पाप पुण्य जो रहता है उसमें से नेक्स्ट जन्म में, जैसे हम लोग के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं ना, फीपो, वैसा जो पुराना जो रहेगा स्टॉक, वो पाप पुण्य का स्टॉक उसको भुगतना पड़ता है नेक्स्ट जन्म में। तो वो क्या स्टॉक है वो देखता है, कौन से तरह का, मतलब गधे का है, कुत्ते का है, आदमी का है, क्या घोड़े का है, कौन से टाइप के उसके भोग है, ये भगवान पहला डिसाइड करता है और उसका मुताबिक शरीर देता है। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, फिर भगवान शरीर बना के रेडी रखता है। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करता है। तो वो जो प्रवेश करता है वो सब अपना संचित पाप पुण्य लेके प्रवेश करता है, और वो दूसरा जन्म में भी अपना माइंड भी वही रहता है। ध्यान में रखो, अपना माइंड भी वही रहता है, और आपने जो ज्ञानेंद्रिय रहते हैं ये भी माइंड के साथ वही रहती है। इसके लिए बहुत टाइम हम लोग जो बोलते हैं ना, इसको लास्ट जन्म का, प्रीवियस बर्थ का या प्रीवियस जन्म का उसको याद है। तो क्यों याद है? उसका माइंड वही है। अगर वो तपश्चर्या करे और उसको अगर मतलब उतनी पात्रता आ जाए तो उसको पुराने जन्म का सब याद आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, या बचपन में कोई बच्चे रहते हैं, उनको इमीडिएट वो ग्रास्प करते हैं। छोटे छोटे बच्चे सारे गमा में गाते हैं, देखो अच्छा गाते हैं। एक लड़का था उसको सब राग मालूम थे, तो इतना अच्छा गाता था। क्यों गाता है? उसको लास्ट जन्म का, प्रीवियस जन्म का उसका कुछ तपस्या रहेगी, गायन का उसने अभ्यास किया रहेगा,
वो उसको काम में आता है, वो उसको याद आता है उसके माइंड को, तो उसको ज्यादा समझना नहीं पड़ता है, वो फटाफट ग्रास्प करता है और फटाफट उसको मालूम पड़ता है। क्यों? वो उसको पुराने जन्म का कर्म है। तो इसके लिए जो हम लोग को करना है जन्म में, और जो करते हैं ना, ये मन से ही करना है, ऐसे नहीं बॉडी से किया। अगर कौन सा भी कर्म करते समय, जो भी हम लोग कर्म करते, क्रिया करते हैं, उसमें अगर मन का आसक्ति नहीं हो तो उसका पाप पुण्य नहीं होता है, उसका पाप पुण्य हमारे संचित में जमा नहीं होता है। तो वो पाप पुण्य जमा होने के लिए मन का आसक्ति होना, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया, क्या अभी हमको आप सुन रहे, अगर आपका उसका मन उसमें नहीं रहेगा तो वो सुनने का क्रिया नहीं होता है, तो कर्म नहीं होता है, तो आवाज आता है खाली, मगर क्या सुन रहे हैं वो मालूम नहीं पड़ता है, इसके लिए वो कर्म कंप्लीट नहीं होता है, उसका पाप पुण्य नहीं होता है। तो कर्म का पाप पुण्य हम लोग को लगने के लिए उसमें मन की आसक्ति लगनी रहनी चाहिए। जब मन की आसक्ति रहती है, मन आसक्त रहता है, तो उसको कर्म बोलते हैं। वो कर्म हम लोग को फल देता है। वो क्या फल देता है? अच्छा कर्म रहेगा तो पुण्य, और बुरा कर्म रहेगा तो पाप। ऐसा दो ही है। व्यास मुनि ने वो मतलब 18 पुराण का अभ्यास किया और उसका सार निकाला। वो बोलते हैं अष्टोदर्श पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। देखो, दो 18 पुराण, इतने 18 पुराणों का इतना बड़ा वांग्मय है, उसमें से उन्होंने सार खाली दो ही निकाला, 2 लाइन में सार बताया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, मतलब दूसरे को पीड़ा करना ये पाप है, और दूसरों को सहकार करना या उसके ऊपर उपकार करना वो पुण्य कर्म है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसके लिए आदमी को जो जन्म दिया भगवान ने, वो आदमी ऐसा एक ही प्राणी है कि जिसको भगवान ने बुद्धि दी, एक ही है। ऐसा भागवतकार बोल रहे हैं, भागवतकार बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी न रहा। क्या बोल रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब ये 4 चीजें सामान्य एतत् पशु भी न रहा। पशु मतलब प्राणी, अब दूसरे प्राणी और मनुष्य प्राणी, ये सबको सेम रहता है। खाना पीना, आहार निद्रा, उठना बसना, मतलब खाना पीना, आहार निद्रा मतलब सोना उठना, एंड भय, जो भय रहता है ये कॉमन रहता है। आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन मतलब काम वासना, जो काम वासना है वो सबको समान रहता है, सब प्राणियों को समान रहता है। मगर आगे भगवतकार बोल रहे हैं ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने ने हीना पशु भी समाना। मतलब भगवान ने ज्ञान, ये मनुष्य प्राणी को ज्ञान ज्यादा दिया है। ये ज्ञान जो दिया है, ये ज्ञान अगर नहीं होता था, और ये ज्ञान दिया है, ये ज्ञान का अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे, ज्ञानी जैसे नहीं रहेंगे, आदमी जैसे नहीं रहेंगे, तो वो बोल रहे ज्ञानी न हीना पशु भी समाना। मतलब अगर ज्ञानहीन जो आदमी है वो पशु, उसमें कुछ फर्क नहीं है, वो पशु समान ही है। इसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे भगवान, क्या हम लोग जब हमारी जिंदगी जीते हैं तो अपनी जिंदगी मत जियो, दूसरों का भी सोचो, दूसरों से परोपकार करो। क्यों करो? क्यों? परोपकार करने की भावना, बुद्धि, ज्ञान ये खाली आदमी के पास है, दूसरे लोगों के पास नहीं है। ये ज्ञान भगवान ने खाली आदमी को दिया है। देखो, दूसरा कोई प्राणी है ना, वो परोपकार नहीं कर सकता है। अभी कोरोना चालू है तो कोरोना को वो आके कुछ खाना वाना नहीं खिला सकता है, खाली आदमी खिला सकता है। अगर आप हाईली एजुकेटेड है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट है, अगर आप आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर होके अपनी ही जिंदगी जिएंगे, अपने बीबी बच्चे देखेंगे, कमाएंगे और आयुष करेंगे, चारों घर में बीबी बच्चे, तो क्या जिंदगी है? ये जिंदगी तो प्राणी भी जीते हैं, उसमें और हम लोग में क्या फर्क है फिर? और वो भी, उनके भी बच्चे रहते हैं, उनकी भी बीवी रहती है, उनका भी संसार रहता है, फैमिली रहता है, तो वो भी कमाते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी उठते हैं, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क पड़ा? यही किया हम लोग, खाया पिया सुख से, कबीर बोलते हैं खाया पिया सुख से सोया, खाया पिया सुख से सोया, उन्होंने क्या कमाया? कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, आया वैसा गया, कुछ कमाया नहीं, क्या याद छोड़ के जाएगा? आदमी करके क्या याद करेंगे लोग? खाया पिया गया, इसमें क्या कमाया? आदमी करके उसने क्या जिंदगी जिया? कुछ नहीं है, ये सब फुकट की जिंदगी। इसके लिए अगर जिंदगी जीना है, आदमी करके जीना है, तो दूसरों का सोचो। व्यास बोलते परोपकार या पुण्याय, तो परोपकार करो।
अगर परोपकार नहीं करते हैं तो आप आदमी ये नहीं करके बोलते हैं, और भगवान को याद नहीं करते हैं तो आदमी ये नहीं करके बोलते हैं। पत्थर है करके ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं, माझी या भक्ति विना जिने जलो तो जियाले पण अगा पृथ्वीवर पाषाण नस्ती का बोलते नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज बोलते अगर मेरा याद करके नहीं जीता है ये आदमी, अरे ये जिंदगी कौन दिया है? आपका जिंदगी चलाने वाला कौन है? भगवान ही है। अगर उसको याद नहीं करेंगे तो पृथ्वी और पाषाण नस्ती का मतलब पत्थर नहीं है या अर्थ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर, जैसे पत्थर है वैसी अपनी जिंदगी। इसके लिए आदमी करके भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या तुम भगवान मतलब 7 चीजें देखो, भगवान ने 7 चीजें ऐसी निर्माण की है सृष्टि में जो खाली परोपकार करते हैं, वो खुद का कुछ सोचते नहीं, स्वार्थ नहीं सोचते। ऐसी है देखो कि ये 7 चीज है, मैं बाद में पता था याद नहीं। हाँ, रवि चंद्र घना रुक्षा नदी गावश्य सज्जना, देखो 7 हो गई। रवि चंद्र घना रुक्षा नदी गावश्य सज्जना ये ते परोपकाराय देवे योग्य ना निर्मिता। 7 चीजें हैं भगवान परोपकाराय देवे योग्य निर्मिता। तो ये 7 चीज क्या है? रवि चंद्र घना वृक्षा, रवि बोलेगा तो सूर्य, सूर्य हम लोग को, सन हम लोग को प्रकाश देता है। क्या देते हैं उसको हम लोग? खाली परोपकार करता है। सूर्य को कोई किया दिया क्या किसी ने कुछ इन रिटर्न प्रकाश देता है करके? नहीं। चंद्र, रवि चंद्र, चंद्र बोलेगा तो मून हम लोग को छाया देता है और शांति देता है। क्या दिया उसको? कुछ नहीं दिया। घना बोलेगा तो बादल, क्लाउड्स जो आते हैं आकाश में, जो बादल हम लोग को बारिश देते हैं, उनको क्या देते हैं हम लोग? कुछ नहीं दिया। वृक्ष मतलब पेड़ जो है हमको फल देता है, फूल देता है, हम लोग को छाया देता है, पत्ती देता है, लकड़ी देता है। सर्वांगी परोपकारी ऐसे बोला है वृक्ष को, सर्वांगी परोपकारी। नहीं, इसके आगे भी वृक्ष का वर्णन करते समय बोला है क्या? खंडावया घाव घाली जे लावणी जयाने केली, जो खंडावया घाल गया दोगा एकची सावली वृक्ष दे, ऐसा। देखो जो लगाता है, वृक्ष लगाता है, उगाता है, और जो कुरान लेके उसको तोड़ने का ट्राई करता है, दोनों को एक ही छाया देता है, उसको फर्क नहीं करता है, दोनों के ऊपर उपकार करता है। तो ये वृक्ष जो है वो परोपकार के लिए ही भगवान ने क्रिएट किया है, परोपकार के लिए ही बनाया है। रवि चंद्र घना वृक्षा नदी, जो रिवर बहती है वो क्या करती है? नदी बहते बहते सब सुजलाम सफलाम करके जाती है, सब पेड़ों को जो किनारे पे पेड़ भी रहते हैं उनको सबको पानी देता है, सबका पाप नाश करके समुद्र जाए आप जैसा। पीड़ित पाप ताप पोषित तिरीचे पादप समुद्र जाए आप गंगेचे जैसे। मतलब पीड़ित पादप बोलेगे तो वृक्ष, तिरीचे पादप बोले जो अपने किनारे पे पादप रहते मतलब वृक्ष रहते, उनको पानी देते 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 समुद्र जाए आप गंगे का मतलब समुद्र को जाके मिलती है, समुद्र को जाके मिलती है। मतलब ये नदी का काम है। तो नदी को क्या देते हैं हम लोग? इन रिटर्न क्या देते हैं? गावश्य सज्जना, आगे 6 गाय, काऊ, जो काऊ हम लोग को दूध देती है, गोबर देती है, क्या क्या नहीं देती है, गोमूत्र देती है, और क्या क्या नहीं देती, सब कुछ गांव का हर एक चीज यूजफुल है। तो जो गाय देती है उसको क्या देते हैं हम लोग? कुछ नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं देते। और लास्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सज्जना। सज्जना बोलेगा तो अच्छे लोग, मतलब वो कैटेगरी में हम लोग आवे करके ट्राई करो। जो सज्जन लोग रहते हैं, सज्जना बोलेगा तो संत बोले, संत। सज्जन बोलेगा तो अच्छा बिहेव करता है, उसको सज्जन नहीं बोला इधर। सज्जन बोलेगा तो संत लोग जो रहते हैं, साधु लोग जो रहते हैं, वो खुद के लिए कुछ नहीं करते। ध्यान में देखो, ये संसार में जो आते हैं वो दूसरे के लिए आते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं रहते। भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को बोला है, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन। हे पार्थ, मुझे ये तीनों लोक में करने जैसा कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब मुझे क्या है? भगवान की जिसको प्राप्ति हो गई, भगवान ही उसका हो गया, मतलब पूरा ये ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का पंत प्रधान, वही उसके गले में आ गया,
तो उसको ये भगवान ब्रह्मांड में से क्या लेना है, 3 लोकों में से क्या लेना है, ये 3 ही लोक का मालिक उनका है, तो जो चाहिए उनको मिल सकता है। इसके लिए उनको कुछ नहीं, संसार से कुछ लेने का नहीं रहता है। वो खाली आते हैं क्या, उद्धराया जन जड़ जीवा, अवतार तुम्हारा धराया कारण उद्धराया जन जड़ जीवा, मतलब जो अवतार लेके आते हैं उनका जन्म नहीं होता है, वो खुद के इच्छा से ये मृत्यु लोक में पैदा होते हैं। अवतार तुम्हारा धराया, साईं बाबा ने जन्म नहीं लिया, साईं बाबा अवतार हो गया। और कई के लिए है, साईं बाबा ने कुछ प्रॉपर्टी बनाई, ज्ञानेश्वर माउली ने कुछ प्रॉपर्टी बनाया, संत तुकाराम ने कुछ प्रॉपर्टी बनाया, महावीर जैन ने कुछ प्रॉपर्टी बना के रखा है, कुछ है फार्म हाउस या कुछ बंगले 4-5 है महावीर जैन के, नहीं है। क्यों नहीं है, अरे उनको उनके इंटरेस्ट ही नहीं उसमें। वो खाली जो आते हैं वो हम लोग का उद्धार करने के लिए, हम लोग को सच्चा मार्ग दिखाने को आता है, जिससे कौन से मार्ग से चलो ये दिखाने को आते हैं, ये उनका काम है। ऑफकोर्स आई एम डाइवर्टिंग, आई नो मगर वो विषय में से विषय आता है, इसके लिए डाइवर्ट हो रहा है थोड़ा। तो माइंड का हम लोग, वी हैव टू टॉक अबाउट द माइंड, बट आई एम गेटिंग डाइवर्टेड, सॉरी। तो माइंड जो है वो भगवान ने मन शांति नहीं दिया, आदमी को मन शांति नहीं दिया, वो मन शांति के लिए उसको भटकना पड़ता है। तो मन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अंतकरण लास्ट टाइम बोला मैं, अंतकरण के 4 भाग है, 4 विभाग है, एक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों जो है इसको कलेक्टिवली अंतकरण करके बोलते हैं। ये बहुत बार हम लोग अंतकरण करके शब्द का प्रयोग करते हैं। ये व्हाट इज दिस अंतकरण? अंतकरण इज नथिंग बट कलेक्टिव ग्रुप ऑफ दिस 4 थिंग्स। 4 लोगों, 4 चीजों का ये कलेक्टिव कलेक्शन बोलेगा तो एक ग्रुप जो है उसको अंतकरण बोलते हैं, जिसको परमात्मा में अंतकरण चतुष्टय बोलते हैं, अंतकरण चतुष्टय। तो अंतकरण चतुष्टय मतलब 4 भाग है। ये अंतकरण 4 प्रकार का काम करता है। मतलब जब वो मन का काम करता है तो मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, मतलब अच्छे और बुरे विचार करना, ये मन का काम एक ही काम करता है। देखो कंटिन्यूअसली माइंड अपना सोचता रहता है, एक क्षण भी वो रुकता नहीं। ऐसा गीता में बोला है भगवान या बुरा रहेगा। तो अच्छे बुरे ख्याल का सोचना ये माइंड का काम है। फिर आगे आता है चित्त। चित्त क्या करता है? जब अपने माइंड में ख्याल आता है तो उसका चिंतन करता है, और चिंतन करके क्या करता है? ये चिंतन करता है कि जो माइंड में ख्याल है वो अच्छा है बुरा है, उसके बारे में एक्ट करना है नहीं करना है, उसके ऊपर रिएक्ट होना है नहीं होना है, तो ये चिंतन करता है। ये चित्त जो है उसका काम है चिंतन। संकल्प विकल्प मनाचे, चिंतन ते चित्ताचे, निश्चय काम बुद्धीचे, अहंकाराचे मीपण, ऐसे चारों का 4 काम है। तो चिंतन करने का काम है चित्त का। ख्याल आ गया माइंड में और खाने के बाद चिंतन करता है चित्त, और चिंतन करने के बाद उसके ऊपर निश्चय मतलब निर्णय, डिसीजन लेने का काम बुद्धि करती है। इसके लिए बुद्धि को ऊपर रखा है। तो परसा मतलब इंद्रिय परम मना मनसा तू परा बुद्धि, ऐसा जो बोला है, मन के ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना। जब ख्याल आता है तो उसका चिंतन होने के बाद वो अच्छा है बुरा है, आज सेमिनार है तो सेमिनार में पार्टिसिपेट करना नहीं करना, मेरे को क्या काम है, ये सब चिंतन चित्त करता है। अगर मेरा काम है तो मैं नहीं कर पाएगा, तो मेरा काम मैं जल्दी खत्म किया तो मैं कर पाएगा, तो क्या करूं, काम छोड़ू या नहीं छोड़ू, करूं नहीं करूं, ये जो चिंतन है ये चित्त का काम है। और ये जो चित्त का काम कंप्लीट होने के बाद, चिंतन कंप्लीट होने के बाद बुद्धि डिसाइड करती है नहीं नहीं नहीं, मैं वो काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग ये सेमिनार में पार्टिसिपेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉलेज मिलेगा, तो वो जो काम है मैं आगे भी कर सकता है, ये डिसीजन बुद्धि देती है। और एक बार डिसीजन लेना तो वो बुद्धि माइंड को इंस्ट्रक्शन देती, माइंड सब इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देते। समझो अगर जाना है तो पांव को इंस्ट्रक्शन देते, चलो अभी किधर वाशी जाना है, तो वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद पांव चलने लगते हैं। जैसे ऑल जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये सब
ये प्रकार से काम करती है। मतलब बुद्धि डिसीजन करने के बाद बुद्धि माइंड को इंस्ट्रक्शन देती है, और माइंड का इंस्ट्रक्शन माइंड सब इंद्रियों को, जो जो इंद्रिय का काम है वो इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देती है। माइंड इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद सब इंद्रिय काम करती है। इसके लिए माइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये माइंड को कंट्रोल किया हम लोग, अगर माइंड को कंट्रोल किया तो ये माइंड सब इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जो इंद्रियों का दमन बोलते हैं ना, दमन करो इंद्रियों का, क्या दमन है? अगर माइंड को कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिक सब इंद्रियों का दमन होता है। जैसे षट संपत्ति बोला है ना, यम दम तितिक्षा उपरति, ऐसे षट संपत्ति है, श्रद्धा और समाधान, ऐसे षट संपत्ति है। तो इसमें यम और दम, यम बोलेगा तो माइंड का यमन और इंद्रियों का दमन। तो दमन बोलेगा तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपने इच्छा के कंट्रोल में बोलेगा तो क्या, इंद्रियों को अपने इच्छा के मुताबिक काम करने को लगाने का, उसको दमन बोलते हैं, इंद्रियों का दमन। तो ये जो दमन कभी होता है, पहला उनका जो राजा है, किंग जो है माइंड, उसको अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ये इंद्रियों भी कंट्रोल होती है। और जब इंद्रिय और माइंड कंट्रोल होता है तो हम लोग जो चाहिए, मैं जो बोलेगा वो उनको करना पड़ता है। और यही फर्क है हम लोगों में और सत्पुरुष में। सत्पुरुष का इनके ऊपर कंट्रोल रहता है, और सत्पुरुष के ये सब गुलाम रहते हैं। जो काम क्रोध का मद मत्सर जो है, षड्रिपु जो है, ये भी सत्पुरुष के गुलाम रहते हैं, और हम लोग इनके गुलाम रहते हैं। ये फर्क है उनके, मतलब ये लोग हम लोग के कंट्रोल करते हैं और सत्पुरुष उनको कंट्रोल करता है। ये उन लोग, मतलब ये इंद्रियों में या सत्पुरुष में और हमें फर्क है। इसके लिए सत्पुरुष का महत्व, इसके लिए बोलते हैं सत्संगति करो। क्यों सत्संगति करो? क्या संगति संगे न दोष है ना। संगति किया अच्छे लोगों का तो अच्छे लोगों के गुण अपने में आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, अब लड़के को स्कूल में भेजा तो उसको बता के भेजते हैं, भैया तू अच्छे अच्छे बच्चों का संगति कर, अच्छे जो क्लेवर रहेंगे, ब्रिलियंट रहेंगे, उनके साथ रहो तो तू भी ब्रिलियंट होएगा। क्या उनका जो स्टडी करते हैं वो तुमको मिलेगा, या उनसे तू पाएगा, कुछ तो लाभ होएगा तेरे को। तो अच्छे लोगों के, अच्छे संस्कारित रहेंगे, उनके साथ रहो। या ऐसे बच्चों को क्यों बताते हैं? क्योंकि बुरे का संगति किया तो बुरे के गुण अपने अंग में आते, और अगर बुरे का अच्छे का संगति किया तो अच्छे गुण हम लोग को मिलते। तो इसके लिए सत्संगति करो करके बोलते, क्योंकि सत्पुरुषों के साथ रहेंगे तो ये जल्दी प्राप्त पाते हैं, वो जल्दी पाते हैं। ऐसे नहीं कि तू आप तपस्या करके या साधना करके नहीं हो सकता है, मगर उसको देर लगता है। अगर आप सत्संग में जाएंगे, सत्पुरुषों के साथ जाएंगे, तो उनके पास दूसरा कुछ बुरा सुनने को मिलता ही नहीं। इसके लिए बुरे गुण हम लोग में आते ही नहीं, अच्छे ही आते हैं। जैसे बोले, देखो एक सुभाषित है सुंदर, मले चल गंधे न, मले चल करके पर्वत है, तो मले चल गंधे न पिंडनम चंदनाए थे। ये मलयगिरी जो है, पर्वत जो है, उसके ऊपर सब चंदन की झाड़ है, चंदन की ट्रीज है। तो ये सुभाषितकार बोलते हैं, मलय चल गंधे न त्रिंदनम चंदन आए थे। त्रिंदनम बोलेगा तो लकड़ी, जलने, जलाऊ लकड़ी जो जलने को यूज करते हैं ना, उसको त्रिंदन बोलते हैं संस्कृत में। तो मलय चल गंधे न त्रिंदनम चंदन आए थे, तथा सज्जन संगे न दुर्जनम सज्जनाए थे। क्या उपमा दिया देखो। बोलते जैसे मलयगिरी पर्वत पे जाएंगे तो सब चंदन ही चंदन है, तो उधर जो त्रिंदन रहते, जलाऊ लकड़ी रहते, फालतू लकड़ी रहते, वो भी, उनको भी चंदन का सुवास आता है। क्यों? चंदन के साथ रहते हैं, इसके लिए उसको वो चंदन बन जाते हैं। जैसे तो आप अगर सज्जन समझो, सज्जनों के साथ रहेंगे तो सज्जन के संगति में दुर्जनम चंदनाए थे, दुर्जनम सज्जनाए थे, दुर्जन भी सज्जन बन जाता है। तो इतना फर्क रहता है सत्संगति का। तो क्यों? क्योंकि सत्संगति में रहेंगे तो उन्होंने माइंड को कंट्रोल किया रहता है, इंद्रियों को कंट्रोल किया रहता है। तो ये शिक्षा, ये बातें हम लोग को सुनने को मिलती है, उनको कैसा कंट्रोल करने का, ये माइंड को कैसा कंट्रोल करने का, ये सब सुनने को मिलता है। तो सुनने के बाद हमको ज्ञान होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक माइंड कंट्रोल नहीं होता है। देखो, माइंड कंट्रोल करने के लिए 4 चीजें लगती हैं। अगर माइंड कंट्रोल करने का है तो 4 चीजें रहती हैं। ये तो ज्ञान होना चाहिए, आत्म क्या और अनात्म क्या, या अच्छा क्या बुरा क्या, या नाशीवंत क्या और विनाशी क्या, और नाशीवंत क्या और अविनाशी क्या।
इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान हम लोग को नहीं है, उसको अज्ञान बोलते हैं। तो ये ज्ञान होना चाहिए तो माइंड कंट्रोल होता है। मतलब क्या ज्ञान होना चाहिए, बुरा क्या है और अच्छा क्या है, किधर जाना चाहिए। हम मैं अगर संगति करना है तो किसका करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मैं पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर मेरे को इंद्रियों को लेके जाना है तो किधर लेके जाना है, ज्ञान होना चाहिए। तो ये जब ज्ञान होता है तो माइंड कंट्रोल हो सकता है। चारों में से पहली चीज लगती है कि ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको सीधे रास्ते थे, अगर भगवान को पाना है तो भगवान को पाने का रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है, कौन से वे से जाना है, ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो हम लोग वो रास्ते से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं, रास्ता ही मालूम नहीं। तो ज्ञान होने के पहले अगर हम लोग उधर नहीं जा सकते, इसके लिए उसका ज्ञान होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, सत्संगति होनी चाहिए। अपना जो संग रहता है वो बुरे लोगों के साथ अगर संगति करेंगे तो आप कभी भी वो मार्ग पे नहीं जाएंगे, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्यों वो विषय वाले, जो उनके दिल में विषय रहते हैं, भले बुरे विषय रहते हैं और विषय में वो मग्न रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं विषय में मग्न रहते हैं, तो आपको क्या देंगे, वो अच्छी चीज नहीं दे सकते। इसके लिए सत्संगति चाहिए। तो सत्संगति, जैसे अभी मैं बोला, सत्संगति में अपना माइंड कंट्रोल होता है, तो उसके लिए दूसरी चीज चाहिए, वो सत्संगति है। तीसरी चीज चाहिए वासना का त्याग। जो हमारी वासना है उसका त्याग करना पड़ता है। क्या वासना है, वासना बोलेगा तो हमारा जो आशा रहता है, इच्छा रहता है, उसका त्याग करना चाहिए। हम लोग को कभी हम लोग रुकते ही नहीं, हमेशा सोचते रहते, हमेशा पाना चाहते। बस 10,000 मिला और चाहिए, 10 लाख मिला और चाहिए, 10 करोड़ मिला और चाहिए, हुई सेटिस्फाइड। कौन सेटिस्फाइड है, ये रोकना चाहिए, किधर न किधर डिमार्केशन रखना चाहिए। इस यहां कहां रोकना चाहिए। सब हम इच्छा करते रहते हैं। मेरे को एक गाड़ी है, 4 मतलब 4 व्हीलर है, मगर वो 4 व्हीलर दूसरे का देखा ना, अरे उसका ऑडी है तो हमारा फालतू लगता है उसके सामने। ये कंपैरिजन बोलते हैं ना, कंपैरिजन मत करो, तुम्हारा तुम सोचो। तो कंपैरिजन करके हम लोग दुखी होते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं। देखो उसके घर में टीवी है, मेरे घर में नहीं है, उसका 4 व्हीलर, उसका ऑडी है तो मेरे को भी चाहिए, उसका मर्सिडीज है, अरे मर्सिडीज अच्छी है, कोई बोलता है मर्सिडीज से क्या वो बीएमडब्ल्यू अच्छी है, तो इसको लगता है अरे बीएमडब्ल्यू लेनी चाहिए। मतलब कहाँ सेटिस्फाइड है ही नहीं। कब सेटिस्फाइड, कौन सेटिस्फाइड है दुनिया में, कौन सेटिस्फाइड है। जिनके पास दुनिया के 5 श्रीमंत है, रिच लोग हैं लिस्ट में, उनको जाके पूछो सेटिस्फाइड है क्या, नहीं है। तो जो वासना जो है ये बहुत बुरी है, ये हम लोग को नचाती है। एक संस्कृत में बहुत अच्छा सुभाषित है, आशा नाम मनुष्य नाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला। देखो आशा बोलेगा तो वांट, इच्छा। आशा नाम मनुष्य नाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला यद बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठति पंगुवत। ये आशा नाम की श्रृंखला से जो बद्ध होता है वो यद बद्धा प्रधावंती, भागता रहता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, रुकता नहीं। यद बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठति पंगुवत। और इससे जो मुक्त होता है वो हैंडीकैप जैसा एक जगह बैठे रहता है, वो भागता नहीं। क्यों, वो खत्म हो गया ना, इच्छा ही नहीं ना दूसरा। ये सिचुएशन, ये अवस्था सत्पुरुषों का रहता है, उनको कुछ लेने का नहीं। जैसा आप बोला, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन, मेरे को कुछ लेना ही नहीं ना 3 लोगों में से। ओ सॉरी, बोलो। हेलो, सुनाई दे रहा है, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, सुनाई दे रहा है। यस ऑडिबल यहाँ करके पिक्चर गया, ठीक है। नहीं सर, सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। ओके, तो ये जो इच्छा है ये भगाती रहती है। 2 मिनट में सेट करते हैं। हाँ, ये जो इच्छा रहती है ना, ये भगाती रहते है। श्रृंखला बोला है, यद बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठति पंगुवत। तो इसके लिए इससे मुक्त होना चाहिए। तीसरी चीज चाहिए, पहली चीज बोला क्या, ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज सत्संगति होनी चाहिए, और तीसरी वासना का त्याग। एंड फोर्थ इज प्राणायाम। प्राणायाम से भी माइंड कंट्रोल, जो योग बोलते हैं ना हम लोग, योग जो समाधि लगाते हैं, समाधि इज नथिंग बट द लास्ट स्टेज ऑफ योगा। योग मार्ग जो है ये भी परिपूर्ण है। इसका एम क्या है, समाधि।
समाधि लगा तो भी ज्ञान होता है ऐसा नहीं। मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चांगदेव, या चांगदेव महाराज करके, जो ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने के लिए बाघ के ऊपर, टाइगर के ऊपर बैठ के और सांप का चाबुक करके गए थे। मतलब इतना कंट्रोल था उनको, मतलब सब प्राणी मात्र के ऊपर कंट्रोल था। वो क्या थे? वो योगी थे, बस नथिंग एल्स। मगर वो योगी करके, वो योगी होके भी उनको ज्ञान नहीं था ना। मतलब योग मार्ग ये परिपूर्ण नहीं है, इसका कहना ये है क्या योग मार्ग परिपूर्ण नहीं। ठीक है, समाधि में से मोक्ष तक जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, मगर समाधि इज नॉट एवरीथिंग। इसके लिए योग मार्ग भी अधूरा है, मगर वो माइंड कंट्रोल करने के लिए ठीक है। प्राणायाम ये 4 चीज रखती है जिससे माइंड कंट्रोल हो सकता है। अगर माइंड 4 चीजों से अगर माइंड कंट्रोल कर पाएंगे तो ये माइंड ही सब कुछ है। जैसे मैं बोला, ये भगवान को आपको बांध के आपके हाथ में लाके दे सकता है। देखो जिंदगी में माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते, जब पढ़ाई किया सीए का तो क्या करते थे, जिसका ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, जिसका माइंड जितना स्थिर रहता है, उतना वो एकाग्र होता है, उतना अच्छा उसका स्टडी होता है। ब्रिलियंसी क्या है? होशियार स्टूडेंट है बोलेगा तो क्या है? उसका माइंड स्थिर है। अगर वो पढ़ाई कर तो पढ़ाई में रहता है, उसको खाने पीने का कुछ चिंता नहीं रहता है। इतना उसका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मतलब स्थिर रहता है। जितना जिसका माइंड स्थिर रहे उतना वो होशियार है, उतना वो लकी है, उतना वो खुश रहेगा। जितना जिसका माइंड स्थिर रहेगा उतना आनंदी रहेगा, उतना सुखी रहेगा। सुख क्या है? ये सत्पुरुष बोलते हैं सुख क्या है? कौन से भी सब्जेक्ट के ऊपर, कौन से भी विषय के ऊपर जितना देर आपका माइंड स्थिर रहता है वो आनंद है। उतना देर आपको उसका आनंद मिलता है। बस वहां से वो निकल गया, आनंद खत्म। वो चीज के ऊपर से माइंड निकल गया तो आपका आनंद खत्म। तो ये आनंद देने वाला भी माइंड है और दुख देने वाला भी माइंड है। तुकाराम महाराज का सुंदर अभंग है, आपको सिर्फ मराठी में इसके लिए मैं ज्यादा बता नहीं सकता है। तो सुंदर अभंग है, वो बोलते हैं गति अधोगति मनाची है युक्ति। मतलब हम लोग को आगे गति मिले, अच्छी गति मिले या अधोगति को जाना, ये मन के ऊपर ही है। गति अधोगति मनाची युक्ति, मन लावा एकांती साधु संगे। तो इसको क्या करो, तो सत्संग में लगाओ, साधु के संग में लगाओ। मन लावा एकांती साधु संगे। मान अपमान मनाचे ही लक्षण। जो मुझे मेरा मान हुआ या अपमान हुआ, इसने मेरा इंसल्ट किया, ये क्या है? ये माइंड का ये सिचुएशन है, ये माइंड का है, ये माइंड के वास्ते होता है। अगर मन में लगेगा मेरा इतना इंसल्ट किया तो इंसल्ट, अगर मन में नहीं लगेगा तो कुछ नहीं है। जो गौतम बुद्ध को जानते हैं आप, गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध ज्ञानी हो गए ना, वो जब उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हो गया, तो गौतम बुद्ध एक गांव, जो जिधर ज्ञान हो गया ना, वो गांव के बाहर जाके एक झाड़ के नीचे ऐसा बैठने के लिए जगह था, उधर बैठा करते थे। उधर बैठ के वो सब लोगों को ज्ञान की बातें बताना करते थे, मतलब प्रवचन देते थे। शाम को 5 बजे प्रवचन देते थे, जैसा हम लोग का अभी शाम को चालू हो गया है। तो ऐसा वो गौतम बुद्ध, मतलब आई एम नॉट अ गौतम बुद्ध। तो ये गौतम बुद्ध जो है, बौद्ध जो है, वो ज्ञान गाड़ के नीचे बैठ के सबको ज्ञान देने का, 5 बजे प्रवचन करने का काम करते थे। तो ये करते करते ये एक लेडी थी, औरत थी, उसको भी उसका आदत पड़ा, उनको अच्छा लगा तो वो दर दिन आने लगी, मगर उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो उसका कहना था, मतलब ही वॉज ऑल्सो राइट, क्या ऐसे साधु लोग आते हैं, भगवा डाल के आते हैं, बैठते हैं और लोगों को ज्ञान दिलाते हैं, मगर ये अच्छे नहीं रहते हैं। बाद में सब ये गलत करके जाते हैं और ये ऐसे साधु लोग ये अच्छे नहीं थे, सही साधु नहीं रहते। ये उसका हस्बैंड का कहना था। मगर इसने जो सुना था, उसका जो रस है, जो वाणी का, क्या उसका जो मजा है, आनंद है, वो इसने देखा था, या औरत ने उसका एक्सपीरियंस लिया था, तो उसको रहा नहीं जाता था, कि उसको बार बार लगता था कि उधर जाके, तो वो सुनती ही नहीं थी उनका, हस्बैंड का सुनती नहीं, दर दिन उनका झगड़ा। ये बोलते जाओ मत, और वो बोलती मैं जाएगी, और दर दिन जाती थी। बहुत झगड़ा हो गया, बहुत गाली मार पीट हो गया, सब कुछ हो गया, तो भी वो सुनती नहीं। अभी क्या करे, हैरान हो गया, सब कुछ हो गया। तो वो अल्टीमेटली इसने सोचा अभी इसको कुछ पनिश करके कुछ फायदा नहीं,
इसको कुछ पनिशमेंट देके फायदा नहीं, इसको मार के भी फायदा नहीं, ये सुनती नहीं। तो मैं ऐसा ऐसे करेगा। सर सर का सर वॉइस ऑडियो नहीं आ रहा है। सर कॉल करिए सर। हाँ, मैं संजय सर कॉल करोगे? अच्छा पाटिल सर को ना? वाइस गेलाय वाइस. He's doing Friends, we that. are starting in a few minutes. Please stay. Actually, sir Friends, has lost the. yeah. So he is joining back in 5 minutes. So just wanted to inform you that we are having two big personality with us also. CA Samir Gavli sir from Navi Mumbai. He is a past chairman of Navi Mumbai branch, and Chandrasekhar Wade sir. So Patil sir is here. Sir, please continue. Sir, continue please. Sir, your voice is not audible. Not audible still. आता बोला. Not audible. Parita, do one thing. Just log out and Hello? log in again. Yes. Hello? It's okay, sir. Okay, it's coming. हाँ. So Start I was again. talking about Gautam Buddha. Yes. गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल, तो हस्बैंड सुनता नहीं था, मतलब हस्बैंड ने सोचा वाइफ सुनती नहीं है, वो तो हमेशा जाती थी, तो हस्बैंड ने सोचा अभी दूसरा कुछ उसको इलाज करना चाहिए। उसने सोचा इसको तकलीफ देने से अलावा ये साधु को ही भगाएगा। वो आसान है ना, उसको तकलीफ देके साधु को ही यहां से भगाएगा तो ये सब पूरा बंद हो जाएगा। सुनाई दे रहा है? हेलो? Yes sir, Hello? सुनाई दे रहा है. Yes sir. हाँ, तो हस्बैंड ने सोचा कि साधु को ही भगा देगा, तो इसलिए एक दिन 5 बजे अगर प्रवचन होता है तो ये 3:30 बजे ही गया। इसका हस्बैंड जो है वो वाइफ का, ये औरत का हस्बैंड है, वो 3:30 बजे जब पहुंचा गौतम बुद्ध जिधर रहते थे वो झाड़ के नीचे, और उनको ये गाली देने लगा, ये करा, इधर से भागो नहीं तो मैं मारेगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत गाली दिया, बुरा सुनाया। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा ही, वो तो गौतम बुद्ध अपने मजे में थे, वो ध्यान में थे, ब्रह्मानंदी लागली काली कौन देहाते संभाली, ऐसा ब्रह्मानंद में मग्न थे। और ये बोलता जा रहा है, मतलब बोल के थक गया, तो आखिर ये बोला, मतलब ये शांत हो गया, तो वो गौतम बुद्ध खाली एक ही सेंटेंस बोला, बोले मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी, आपके दिवाली है और आप आपके किसी फ्रेंड के पास गए, कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके गए, और फ्रेंड के पास गिफ्ट लेके गए और वो फ्रेंड को बोले तुम दिवाली गिफ्ट लाया तुम ले लो करके, और वो अगर फ्रेंड ने वो गिफ्ट नहीं लिया तो गिफ्ट किसके पास रहेगा? गौतम बुद्ध उसको पूछ रहे हैं क्या अगर तू देने को गया वो गिफ्ट, वो तुम्हारे फ्रेंड ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने लिया ही नहीं, तो गिफ्ट किसके पास रहेगा? तो बोले मेरे पास ही रहेगा। जैसा तेरा गिफ्ट तेरे पास रहेगा वैसा अभी जो तू बोला 1 घंटे के लिए मुझे गाली दिया, वो अगर मैं लिया ही नहीं, सुना ही नहीं, तो वो रहेगा किसके पास? तेरे पास। वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जैसा है जिधर माइंड नहीं रहेगा तो कुछ काम का नहीं है। तो
माइंड जो है वो सब आनंद देने वाला भी वो है। मान अपमान है ये माइंड का काम है। मान अपमान मना चाहिए लक्षण। लावलिया ध्यान वही कर, वो लावलिया ध्यान तेजी करी, मतलब अगर वो ध्यान को बैठेगा तो ध्यान करने वाला भी मन है। देखो भगवान का ध्यान करते हैं, उसके ऊपर अगर माइंड नहीं रहेगा तो वो क्या ध्यान है? वो ध्यान ही नहीं है ना। आप आंख बंद करके बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं और माइंड अगर सब जगह घूम रहा है। कबीर जी का अच्छा दोहा है, कबीर जी बोलते हैं माला तो कर में चले, वो बोलते हैं माला तो कर में फिरे, जिब्या फिरे मुखमाई, मान तो दाही दिस फिरे, यह को सुमरन है। क्या बोल रहे हैं? माला, जब माला जपते हैं तो माला तो कर में फिरे, मतलब हाथ में माल जप रहा है, जाप कर रहा है मंत्र का, और जिब्या फिरे मुखमाई, जब जीभ से टंग से मंत्र का उपचार कर रहे हैं, राम राम यश कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं और माला इधर जप रहे हैं, जिब्या से मंत्र जप कर रहे हैं, हाथ से माला जप रहे हैं, और मान तो दाई दिस फिरे, मतलब जो मन है वो दाई दिशा को भटक रहा है। तो वो क्या जप है? क्या ये नहीं जप है, ऐसा जप नहीं होता है। तो जब तक माइंड उसके ऊपर नहीं रहता वो कुछ नहीं होता है। इसके लिए बोले मान अपमान मना चाहिए लक्षण, लावलिया ध्यान तेची करी, तुका मने मन उतरी भव सिंधू, मन करी बंधू 84चा, मतलब भव सिंधु से, संसार से पार करने वाला, भव सिंधु से पार करने वाला भी माइंड है, और उसमें बांध कर रखने वाला पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, किती वेळा जन्मा यावे किती व्हावे फजित, तो ऐसा बार बार जन्म लेना और फजित होना, ये जिंदगी जीना, विषय भोग का जिंदगी जीना, ये करने वाला मन ही है, और इसमें से बाहर निकालने वाला भी मन है। देखो इससे आगे जाके मैं आपको बताता है ये मृत्यु लोक में जन्म लेने का कारण क्या है। तो जो हम लोग कर्म करते हैं वो कर्म के वास्ते हम लोग को कर्म भुगतने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। तो ये कर्म करने वाला कौन है? ये माइंड ही है। जब तक कौन सी भी कर्म में माइंड नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी, तो वो कर्म नहीं होता है। तो इसका मतलब कर्म करने वाला भी माइंड है और इसमें से बाहर निकालने वाला भी माइंड है। इसके लिए माइंड बहुत पावरफुल है, और माइंड का मैनेजमेंट अगर करेंगे तो आपको दूसरा कुछ नहीं, आप भगवान ही है। मैं जैसे लास्ट टाइम बोला, अगर माइंड को कंट्रोल करेंगे और माइंड का मैनेजमेंट अच्छी तरह करेंगे, यू आर नथिंग बट द भगवान। आप भगवान बन सकते हैं और भगवान का सब शक्तियां, सब गुण, दिव्य गुण आप में आ सकती है। आपकी मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सब दिव्य बन सकता है। ये एक का ही काम है, एंड दैट इज माइंड। इसके लिए माइंड के ऊपर कितना बोले? जितना बोले उतना। लास्ट टाइम बोला, ये टाइम बोला, आप बोलो तो 2 घंटा भी बोल सकता है, उसमें नो प्रॉब्लम। तो ऐसा ही माइंड है। तो लास्ट टाइम में एग्जांपल दिया था, देखो अर्जुन ने भी बताया, मगर ये इतना मुश्किल, आसान काम नहीं है। माइंड को कंट्रोल करना ये आसान नहीं। भगवान ने अर्जुन को भी यही बताया, क्या अरे तू माइंड मुझे दे दे, मगर अर्जुन ने सवाल किया उसके आगे, भगवान आप बोल रहे हैं मुझे माइंड दे दो, मन और मयो मन अदवो मई बुद्धि निवेश, ये मन और बुद्धि आपको दे दो करके आप बोल रहे हैं, मगर ये इतना चंचल है, इसको कैसे दे? इसका देना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा श्लोक है, छठा चैप्टर नंबर 6 में वो बोल रहे, 32 नंबर श्लोक है। तो वो बोल रहे हैं चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथे बलवत दृढ़म तस्यम निग्रह मन्ने वायु युव सुदुष्करम, बोले इसको रोकना, इसको स्थिर करना बोलेगा तो हवा को रोकने के जैसा है। तस्यम निग्रह मन्ने वायु युव सुदुष्करम, मतलब हवा को रोकना जैसा मुश्किल है उतना इसको रोकना मुश्किल है। तो ये बहुत मुश्किल, चंचल, इतना चंचल है। अर्जुन उसको चंचल बोलते हैं, मगर ज्ञानेश्वर महाराज इसको चपल बोलते हैं। ये चपल है, चंचल नहीं चपल है। और तुकाराम महाराज इसको चंचल और चपल बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। चंचल चपल जाता येता न लगे वेळ, ऐसे तुकाराम महाराज बोलते हैं। मतलब ये चंचल भी है और चपल भी है। ये देखो चंचल चपल बोलते हैं, मतलब ये दो अलग है, एक ही चीज तो नहीं है। चंचल अलग है और चपल अलग है। चंचल उसको कहते हैं कि जो एक काम छोड़ के दूसरा काम, दूसरा एक आधा छोड़ के दूसरा काम करते हैं, दूसरा आधा छोड़ के तीसरा करते हैं, उसको चंचल बोलते हैं। तो चंचलता ये गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। अगर हम बोले ये लड़का चंचल है तो ये दुर्गुण है वो लड़के का। तो चंचल होना ये दुर्गुण है, बट चपल होना ये गुण है। चपल किसको बोलते हैं? एक काम फटाफट कंप्लीट करके दूसरा काम करता है, उसको चपल बोलते हैं। तो वो चपलपन ये उसका गुण है। तो मतलब वो दुर्गुणी भी है और गुणी भी है। उनको ये कहना है कि ये दुर्गुण में है, उसको अच्छी तरह उसको मैनेज करेंगे,
अच्छे चीज में लगेंगे वो तो गुणी है, इसके जैसा गुणी कोणी नहीं। और उसको अगर अच्छी तरह मैनेज नहीं करेंगे, उसको अच्छी तरह कंट्रोल नहीं किया, तो ये दुर्गुणी भी है, ये दुर्गुण भी है, दोनों है ये। तो माइंड, ये सब कुछ जो है वो माइंड है, ध्यान में रखो। अपना बॉडी भी चल रहा है पूरा, वो माइंड के ऊपर चलता है। तो ऐसा अगर आप अच्छी तरह मैनेजमेंट करेंगे, माइंड मैनेजमेंट करेंगे, तो नथिंग लाइक दैट। तो जिंदगी में आपको सुखी होना है तो माइंड कंट्रोल करना सीखो। अगर माइंड कंट्रोल नहीं होता है तो आप पूरे दुखी रहेंगे, ये दुख ही दुख देगा आपको, दूसरा कुछ नहीं है। सुख, मैं जैसे बताया ना, मैं सुख क्या है, आनंद क्या है, माइंड उसके ऊपर स्थिर हो, वही सुख है। जब तक वो स्थिर होता है एक चीज के ऊपर, तब तक सुख है। नया गाड़ी लिया, तब तक नया गाड़ी के ऊपर माइंड स्थिर होता है, तब तक वो सुखी है, तब तक वो सुख देती है। मगर दूसरे का बीएमडब्ल्यू देखा और ऐसा लगने लगा अरे मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो बस ये गाड़ी का सुख गया, वो चंचल हो गया, दूसरे गाड़ी के ऊपर बीएमडब्ल्यू के ऊपर गया, तो इसका सुख नहीं लगता है। तो ये जब तक, जितना देर तक वो जो चीज के ऊपर स्थिर रहता है, उतना तक हम लोग को आनंद मिलता है। इसके लिए विषय का आनंद जो है ये बदलता रहता है, वो नाशीवंत है बोलते हैं, ये नाश पाने वाला है। तो फिर क्या करे, तो परमानेंट आनंद कहाँ मिले, तो भगवान के सिवा दूसरा दुनिया में आनंद नहीं। किंबहुना आनंद यही नाम भगवान का है, सुख या आनंद ये नाम भगवान का ही है। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है का जो आनंद नहीं चाहता है। इसके लिए ऐसे बोलते हैं कोई नास्तिक नहीं है, दुनिया में कोई नास्तिक नहीं। सतपुरुष बताते हैं ये दुनिया में कोई नास्तिक नहीं। क्यों? अरे हर एक कोई आनंद को चाहता है, हर एक कोई क्यों सुबह से शाम तक जो काम करता है वो काहे के लिए करता है? अरे अपनी जिंदगी में आनंद मिले करके काम करता है, और काहे के लिए? सुखी हो करके का। तो ये आनंद क्या है? ये भगवान का रूप है, आनंद ही भगवान है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग फॉर भगवान। ऐसा नहीं भगवान का अगरबत्ती लगा के पूजा किया तो ही भगवान का पूजा, ऐसा नहीं। आप आपका कर्म अच्छी तरह करेंगे तो भी वो पूजा। बोलते हैं ना कर्म ही भगवान है, कर्म ही का भक्ति है, तो ये सही है। मगर वो धर्म के मुताबिक करेंगे तो, इधर उधर जाके करेंगे तो भक्ति नहीं है। जो वर्णाश्रम धर्म है, अपना जो वर्ण है या वर्ण है या ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी अपने वर्ण का काम है वो काम करना, और वो भी धर्म का मुताबिक करना, मतलब नियम के मुताबिक करना। और जो आश्रम है, 4 आश्रम है ना, जैसा वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 आश्रम है। तो वो 4 आश्रम और 4 वर्ण, इनका मुताबिक धर्म में जो इनका कर्म बताया है वो कर्तव्य करने, उसको कर्तव्य बोलते हैं। ये कर्तव्य धर्म का मुताबिक करना, तो वो भक्ति होती है। फिर उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं। अपना कर्तव्य अच्छी तरह करना यही धर्म है, और अपना कर्तव्य अच्छी तरह पार करना यही भगवान का भक्ति है। बस यही करो। तो इसके लिए अगर ऐसे करेंगे तो करोड़पति नहीं होंगे। तो भगवान ने इसके लिए, देखो साई बोलते, जो साई बाबा है ना, वो कहते हैं साई इतना दीजिए। देखो वो मांगते समय भगवान से इतना मांग रहे, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और सब भी भूखा न जाए। बस मुझे इतना ही दे दो, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, मेरी जो फैमिली है उनका भरण पोषण करूं, सुबह शाम उनको खाने को मिले, और मेरे घर में कोई मेहमान आ गया, अतिथि आ गया तो उसको खिलाऊं अच्छी तरह। बस इतना ही दे दे, इससे ज्यादा मत दे दो। ये साईं बाबा मांग रहे। और हम देखो हम क्या मांग रहे हैं, हम तो दे दो दे दो, जितना देगा उतना करो। इसके लिए कबीर तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसीदास भी जी उनका भी बहुत अच्छा कहावत है। वो बोलते हैं क्या, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, बस थोड़ा सा समय निकाल कर हरि भजन कर प्यार से, थोड़ा सा दे दो। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी यही बोला है, मतलब वो नहीं सुनाता है मैं, मगर उसका भी मीनिंग यही है, क्या थोड़ा सा समय दे दो, ज्यादा मत दे दो। तुम्हारा 24 आवर्स मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा समय निकाल कर हरि भजन कर प्यार की। अरे वो बोल रहे हैं कि जब भगवान जो तुम्हारा पूरा जिंदगी चला रहा है, जन्म लेने से मरने तक आपका सांस चलाने वाला कौन है, आपका ब्रीदिंग चलाने वाला कौन है, सांस उच्छ्वास ले रहे हैं वो कौन कर रहा है, ये करने वाला भगवान है। वो जब तक अंदर है तब तक चलता है,
इसके लिए जो साधु लोग बोलते हैं सांस के ऊपर ध्यान रखो, ये सांस ही भगवान है। तो ये सांस चलाने वाला भगवान है। वो कब से चलाता है? जब से हम लोग जन्म लिया है और मरने तक वो चलता रहता है। जब वो रुकता है तो बोलते गया, 4 लोग उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो ये चलाने वाला कौन है? गीता में भगवान ने बताया, अच्छा श्लोक है, भगवान ने 18वां चैप्टर में बोला है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठत, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठत, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ये अर्जुन, ईश्वर नाम का चीज हर एक के हृदय में है और वो ये यंत्र के ऊपर, भ्रामयन यंत्ररूढ़ानि, यंत्ररूढ़ानि मतलब यंत्र के ऊपर सवार होके, भ्रामयन मतलब घुमाता है, चलाता है। भ्रामयन सर्वभूतानि, सर्वभूतानि मतलब सर्वभूत मात्र को चलाता है। सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया, ये शरीर रूपी यंत्र के ऊपर बैठ के वो सब भूत मात्र को चलाता है। तो ये चलाने वाला भगवान है। चलाता है मतलब क्या करता है? आप उसको सैलरी दे दो नहीं दे दो, क्या पब्लिक हॉलीडे दे दो नहीं दे दो, ओवर टाइम दे दो नहीं दे दो, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता है। उसको गाली देंगे तो भी आपका वो शरीर चलाता है। उसकी सेवा करो नहीं करो, तो ये सत्पुरुष बोलते हैं क्यों थोड़ा सा दे दो। तुलसीदास जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अरे वो जो तुम्हारा जिंदगी पर शरीर चलाता है, पूरी जिंदगी तुम्हारा शरीर चलाता है, तुम्हारी सेवा करता है, उसके लिए थोड़ा सा समय नहीं निकालते। अगर इतना भी समय आप उसके लिए निकाल नहीं सकते तो आपको कैसे कृतज्ञ कहे? आप कृतज्ञ हैं उसके, और आप कृतज्ञ नहीं। भगवान को आप याद नहीं करते, जो भगवान आपको जिंदगी दिया और वो आपकी जिंदगी चलाता है। देखो ये बोलते हैं ना, साधु लोग बोलते हैं आपका संसार चलाने वाला भाई वही है। क्यों कह रहे? आपका शरीर ही वो चलाता है। वो शरीर से जो संसार करते, जो कमाते, जो काम धंधा करते हैं, ये शरीर नहीं चलेगा तो आप कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हु इज डूइंग दिस, ये सब करने वाला कौन है? ये भगवान ही करता है। इसके लिए बोलते हैं कि आपका सब जिंदगी चलाने वाला, संसार चलाने वाला, आपका ऑफिस चलाने वाला कौन है? तो भगवान। अगर भगवान ये शरीर नहीं चलाएगा तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए तुलसीदास जी बोलते हैं बस थोड़ा सा समय निकालकर हरि भजन कर। बाकी जो करते हैं ना सब नाटक बहुत करते हैं। अमिताभ बच्चन जी के फादर का नाम क्या? हरिवंश बच्चन। और हरिवंश बच्चन की उनकी बहुत अच्छी कविता है। वो बोलते हैं जिंदगी ये रंगमंच है यारो, जिंदगी एक जिंदगी एक नाटक है, और ये जिंदगी के नाटक में हम लोग रंगमंच में के सब नाटक कर रहे हैं। यहाँ माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। बोले जिंदगी सब नाटक है। कभी किसी ने पूछा कैसे हो, तो खुशी में हो करके कहना पड़ता है, खुशी में अच्छे हो करके कहना पड़ता है, ये नाटक ही है ना। वो बोलते हैं कैसे हो? हाँ सब खुश है, अच्छे है, रहे। सच में वो अच्छा रहता है क्या? नहीं रहता है। इसके लिए बोलते हैं सब नाटक है, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ आदमी आदमी से जलता है। तो 5 बजे अपना टाइम हो गया है। तो धन्यवाद सबको, धन्यवाद देता है जो भी सुन रहे हैं, सबको धन्यवाद देता है। अतुल जी, बापना जी और वजय साहब भी आने वाले थे, उनको भी मतलब उनके सामने नतमस्तक होता है। सब श्रोतों के, जब जो सब सुन रहे हैं उनको नतमस्तक के नमस्कार करता है और धन्यवाद देता है। आपके वास्ते ही मुझे भगवान की सेवा करने की संधि मिली, इसके लिए वापस बार बार धन्यवाद देके मेरा इधर सेवा इधर स्टॉप करता है। और वापस ये क्या आपको मिलने की संधि आप देंगे ऐसा एक्सपेक्ट करता है। धन्यवाद। Sir, thank you very much. But I just wanted to highlight you that in your entire session, 200 plus member was there, and they have really graceful. And in comment box, I am able to see that many members has appreciated that the webinar was very awesome and very helpful. And I wanted to acknowledge that we are having CA Suresh Ameria sir, past chairman Navi Mumbai branch, who also joined us, and CA Samir Gavli sir is a past chairman of Navi Mumbai branch. I think Samir sir, are you getting my voice? Yes, I'm getting your voice. Yes. Sir, can I come on video? Thank you, Samir sir and Suresh sir for joining us. Now I request CA TC Bafna sir to give a formal vote of thanks. Ajay sir is joining once again.
Vazir sir is joining. Vajay sir is joining, yeah? Okay. Yes, yes. वजह सर बोलने वाले हैं राम प्रभु राम के Yes, ऊपर sir. कुछ। Yes, yes, he's joining. He's joining. He's not yet joined. He will be joining within 2 minutes. So comments are thanks to Patil sir, organization team for such an information session. Amazing seminar, very nice. Nice session. Sir, it's very less time to hear you. Excellent session. Sir, 5 minute और बोलिए. Namaste sir. So sir, very awesome remarks from members, and all are very happy. Actually, Patil sir has got another provision at 5:15. Okay, okay. Okay. So I request Bafna sir. Bafna sir. सर अनम्यूट करिए अपने आप को. सर अनम्यूट करिए. Apna sir, you are not audible. सर अनम्यूट करिए. Hello, are you hearing? Yes, 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 Hello, sir. are you hearing? Yeah. तो पाटिल साहब का और सभी टीम का, अतुल बेड़ा साहब, संजय भुजबल, समीर गावली एंड आदि सभी पधारे हुए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन कि इतना आध्यात्मिक ज्ञान पाटिल साहब ने दिया है. और मैं तो शुरू में एक्चुअली इतना सोच नहीं रहा था कि मैं इतना आध्यात्मिक प्रवचन जो है वो पाटिल साहब देंगे, क्योंकि कभी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहो कि कभी आध्यात्मिक प्रवचन देना है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है. लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन जो वाशी में है, उनकी शुरुआत जो है वो किसी साध्वी के चरण कमलों से, उनके मुख्य प्रवास से और मुख्य प्रवचनों से ही हुई थी. और हमें बहुत अच्छा लगा था कि ये ऐसे प्रवचन अगर चलते रहे तो चार्टर्ड अकाउंट और प्रोफेशनल को एक अच्छा प्रोफेशनल सुख वाले खुशहाली के रूप में देख सकते हैं, रादर देन के टेंशन वाला प्रोफेशन लेके चले. तो आपका आध्यात्मिक जो प्रवचन है वो रियली मैं बहुत सरप्राइज करता हूँ. इतना अच्छा आप प्रवचन बोलते हैं कि मुझे तो आपके पास अब तक पता नहीं क्यों वाशी में आपसे वंचित रहा. मैं आपके प्रवचनों से मुझे नहीं समझ में आता, कभी अभिषेक ने मिलाया नहीं है, क्या पता नहीं क्या हुआ कि कभी आपसे मिलना नहीं हुआ. तो इस वजह ये मेरा दुर्भाग्य है, यू कैन से. तो अभी मैं मिलता रहूंगा आपसे. और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. जो आपने बोला नटसेल में, एक्चुअली मेरे को जो है ना एक हमारे राजस्थान में हिंदी में एक वो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है. सकारात्मक विचारों से आशावादी कर्मवीर होते हैं. मनुष्य की समस्त जीवन प्रक्रियाओं का संचालन उसके मस्तिष्क द्वारा होता है. मन के हारने पर पराजय का मुंह देखना पड़ता है. सुख और दुख जीवन का चक्र है. विविधताओं से भरा हुआ यह समाज और ये संसार है. यह पराजय का अनेक रंग है, मगर ये मनोयोग पर आधारित है. मन के योग से उसकी विजय संभव है, ऐसी मेरी आशा है. और ऐसा शायद पाटिल साहब भी सोचते होंगे जिनका. और आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अभिषेक का और दिस विराट का, जो इसने अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, संजय निकम का. ऐसे अच्छे प्रोग्राम बीच में होते रहे तो प्रोफेशनल वाला जो है अपना जो है प्रोफेशनल जो उद्देश्य है उससे एक मनोरंजन वाला हो जाए और ज्ञान, आत्मज्ञान मिलता रहे, ताकि हम अच्छे काम करते रहें. यही हमारा सकारात्मक विचार आते रहे और हम आगे बढ़ते रहे. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. थैंक यू. थैंक यू अपना जी. वाजिर सर नहीं आ पा रहे. अतुल सर आप एक बार आ सकते हैं सर? हाँ है अतुल सर ना. यस सर, यस. संजय सर आप कुछ बोलिए सर. विराट, समीर सर भी है अपने साथ. बोलने देना, उसके बाद मैं बोलता हूँ. समीर सर को लेना. हाँ, समीर सर अभी थे स्क्रीन पे, शायद उनका कैमरा ऑफ हो गया है. समीर सर, hello. Samir sir, can you just on your audio? Yes, sir. During this lockdown, if you want to add something
for our members? Nothing. I mean, पाटिल सर के आगे बोलना बहुत मुश्किल है, तो I won't be able to speak anything. अगर वजह सर या कोई सीनियर मेंबर है तो उनको बोलने दीजिए. That would be better. Either Viraj then can conclude the session then. वो नहीं join कर पा रहे. वजह सर नहीं आ पा रहे. नहीं, Okay. उनका और एक वजह तो सर उसमें है, तो we have ज्वाइन नहीं कर time. पा रहे. सर आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. समीर सर आप ही कुछ बोल लीजिए, वजह सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे. नाही संजय तू बोल आणि कंक्लूड करा. संजय भुजबळ साहेब तुम्ही बोलून कंक्लूड करा. नो प्रॉब्लेम, चालेल. I think it will not be a good gesture to speak in front of Patil sir after saying Patil sir. It will be better to conclude the session so that we can have another present and another webinar. Sir, thank you Thank you very so much. संजय निकम सर, आपका एक फाइनल वोट ऑफ थैंक्स सर, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. संजय निकम सर. हाँ, नक्की. Friends, we at Navi Mumbai are very privileged and honored to have association of sir. As Atul sir said, that almost every chartered accountant who has cleared from Navi Mumbai in his lifetime must have his blessings at least once in his life, his tenure. Because ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पाटिल सर को जानता नहीं, ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग वहाँ पे नवी मुंबई में नहीं जो पाटिल सर को जानता नहीं. और आज आपने पहली बार शायद आपने उनको सुना, और ये हमारा प्रिविलेज रहा है कि हम हमारी कंप्लीट प्रोफेशनल लाइफ सर के आशीर्वाद के और ब्लेसिंग के नीचे गई है. सो यू कैन सी हाउ मच प्रिविलेज वी आर. बाफना सर, ये हमारी गलती है कि हम उनके स्टूडेंट अब तक उनका नॉलेज और उनका ब्लेसिंग ला नहीं पाए. So now onwards we will try to conduct these webinars regularly. Every Sunday in our private group we arrange his seminar, a webinar on spiritual guidance. So friends, not only that spiritual guidance, I'll appreciate Patil sir's contribution towards his principles also. Since last 14 years, Patil sir has guided and mentored our Navi Mumbai branch, and you from outside must have observed that Navi Mumbai branch is so disciplined and so neatly connected community, and all credit goes to Patil sir. And after Patil sir, whoever chairmen we got in our Navi Mumbai branch, including Samir, Shrikant Limiye sir, Manoj Pandey sir, Mahashabde sir, Shetty sir, Mangal sir, Shankar Tekchandani sir, Sri Kumar Nair sir, from all across the community, and everybody followed whatever principle laid down by the Patil sir. And at present also, Jayant Tandel sir, Santosh Sharma sir, and our vice chairman Sanjay Bhujbal sir are walking on the path shown by Patil sir. So the legacy of the Patil sir will continue, and we are blessed and privileged to have his blessings. Till now we got, and we hope that for our lifetime we'll get his blessings and guidance for our life, way of living life, and to live in professional life also. So with these words, I'd like to thank all the organizers, all the attendees, and the guest of honors, like even for Vajay sir, who attended for a few minutes at least, our past WRC chairman, Atul Beda sir, I thank him also. And not last, not but the least, the audience, Virag, Bafna sir, and Abhishek, our beloved young member of our committee. Because of his initiatives and his energy, we are able to reach all the people. Thank you very much for organizers, and over to you, Virag. Thank you, sir. Thank you. Sachin ji from the audience joined from the first, and he also want to speak something, I think. Sachin कोठावड़े जी, आपको कुछ बोलना है? सचिन जी, हाँ, या अनम्यूट योरसेल्फ. आप सबसे पहले ज्वाइन किए थे और लास्ट तक सुन रहे हो अभी तक. आई थिंक उनका अभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया लग रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे. So with this word, sir, thank you so much from our side also.
इट्स अ वेरी वंडरफुल सेशन सर एंड जो ऑडियंस को हम आज कनेक्ट नहीं कर पाए उनको हम वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएंगे सर. So with this, we would like to conclude this session. Thank you so much all. मुझे भी Thank you everyone. भेजना। Thank you, sir. Thank जी you. जी सर Thank जी you. जरूर. Thank We you. are मुझे भी we'll भेजना recording. put it on the YouTube channel of our branch also. We have a YouTube channel, so we can make this link available on our YouTube channel. We have a good subscription over there. So these golden words will reach to mass people also. जी सर जी 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 जरूर. Thank you, Sure, Viraj. sure, and sir. conducting such a nice webinar for us. It was Thank you, sir. just a privilege to You can listen. join our private session also. Yes, sir. Sure, sir. Everyone. So we are Thank you, Sanjay Nikam, sir. Sanjay Bhujbal, sir. Thank you, Abhishek. हाँ